Now in the previous video we will discuss about the electromagnetic induction. So today we will discuss the application of electromagnetic induction, and we say that is electric generator. That is electric generator. Today we will discuss this, and also we will discuss in that video the Fleming right hand rule. So all these are based on the electromagnetic induction. So first of all, what is electric generator? So electric generator is a device which convert mechanical energy into electric energy. So in the previous video we have discussed electric motor. So electric motor is a device which convert electric energy into mechanical work, and electric generator is a device which convert mechanical energy into electric energy. You oftenly see generator around you. You will add that petrol or diesel in that, then that rotates, and electricity is produced. Means that rotation is a mechanical energy, and that mechanical energy converted into electric energy. Clear? So now we will discuss in that video what are electric generator. So what is electric generator? A device which convert mechanical energy into electric energy is called generator. And also previously I told you that electric generator is based on the electromagnetic induction. Means electric generator is an application of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था कि जब हम किसी भी क्लोज कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, चेंज मीन्स कभी कम किया, कभी क्या किया, ज्यादा किया, तो उस क्लोज कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा. उसी के बेस के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है. सो नाउ आई विल ड्रॉ अ डायग्राम ऑन द बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. Clear? So first of all, in the electric generator there are the two magnets like this. Clear? This is the north pole and this is the south pole. So these two magnets are used to provide a strong magnetic field. कि जो ये आपकी मैग्नेट्स हैं इनका काम है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाना. उसके बाद we will take a coil. This is a coil, insulated coil of copper wire. Clear? So this is a coil. Its name is ABCD. A, B, C and D. So after that, this coil is connected with a rings. Clear? This is connected with the rings. This ring is R1 and that ring is R2. Or we say that these are the commutators. Clear? इसको हम कहते हैं commutators. And now this ring is connected with a brushes. So we say that this brush is B1 and this brush is B2. और जो आपके brushes हैं that are made up of carbon. ये किसके बने हुए हैं? कार्बन के बने हुए हैं. Now after that it is connected with a galvanometer. Clear? ये किससे connected है? galvanometer से. So previously we have discussed about the galvanometer कि what is galvanometer, कि जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये galvanometer डिफ्लेक्शन देगा, और ये हमें आउटपुट भी कह सकते हैं इसको हम, कि जो आउटपुट मिलेगा आपसे यहाँ से मिलेगा आपको. So this is a simple diagram of electric generator. Clear? मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाना है. कोयल है किसकी? इंसुलेटेड कॉपर वायर की. इसका काम क्या करना है? ये रोटेट करेगी. अभी जो रिंग्स हैं जिसको हम कम्यूटेटर कहते हैं, इनका काम है क्या? करंट को फ्लो करवाना. क्लियर? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना है. हमने पास स्प्लिट रिंग्स थे, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर भी यहाँ पे आएंगे. ब्रशेस का काम है कि इस पूरे सर्किट से जो करंट आ रहा है उस करंट को सर्किट से बाहर गैल्वेनोमीटर तक लेके जाना. तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी. अब इसकी थ्योरी क्या होगी? थ्योरी मीन्स इसकी वर्किंग कैसे होगी कि हाउ अ जनरेटर वर्क्स. तो बेटा कुछ नहीं है, मैकेनिकली हम क्या करेंगे, इस कॉइल को रोटेट करवाएंगे. मींस मैकेनिकली दिस कॉइल रोटेट्स. जब ये कॉइल रोटेट होगी तो इस कॉइल के ऊपर जो इस मैग्नेट की वजह से फील्ड है वो चेंज होगा, और अगर इस कॉइल के ऊपर फील्ड चेंज हो रहा है देन इन दैट कॉइल करंट प्रोड्यूस. तो सिंपल सी बात कर लेते हैं. वी से दैट AB इज मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अगर AB डाउनवर्ड जाएगा तो जो CD होगा ये ऊपर की तरफ आएगा. तो फिर से अगर हम देखते हैं कि जो AB है वो नीचे की तरफ गया. AB कहाँ गया? नीचे की तरफ. मीन्स कोई चीज नीचे की तरफ, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ. तो हमने फिर से अपने हाथ को लेना है. क्लियर? ये अगर F है, ये B है और ये I है. तो अगर F नीचे की तरफ है, क्लियर, F नीचे की तरफ है, B की डायरेक्शन उधर है और I ऊपर, तो मीन्स इन दैट AB जो करंट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, और CD में करंट कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा. फिर से जब ये ऐसी थी फिर ऐसे होगी. इस पोर्शन के अंदर आगे से कनेक्शन रिवर्स टूट गए. अब जब यहाँ पे CD आ जाएगा वहां पे क्या आएगा? AB आएगा. अब CD में करंट ऊपर जाएगा और AB में करंट कहाँ आएगा? नीचे आएगा. सो इन दैट वे वी कंटिन्यूअसली रोटेट दिस कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दीज मैग्नेट्स.
and when it coil rotates in the field of these magnet, so the field on that coil, magnetic field on that coil varies means कभी कम होगा, कभी क्या होगा ज़्यादा। जब ये कोयल ऐसी होगी तो फील्ड मैक्सिमम होगा, जब कोयल ऐसे है तो फील्ड मिनिमम होगा, फिर अगले स्टेप में फिर मैक्सिमम, फिर अगले स्टेप में फिर मिनिमम। सो इन दैट वे दिस कोयल रोटेट्स between the strong magnet, and when it rotates the field on that coil varies or changes, और जब field change होगा तो इस coil में हमें current produce होगा, and that current will get through this output, or this galvanometer shows deflection. So this is the theory of a, or we can say working of a generator. आपने सिर्फ यही डायग्राम ड्रॉ करना है। मोटर और जनरेटर के डायग्राम में सिर्फ फर्क यह है, मोटर में यहाँ पे बैटरी थी क्योंकि करंट दे रहे थे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है क्योंकि हम करंट ले रहे हैं। अब आपके जो जनरेटर है वो दो तरह के होंगे, एसी और डीसी। अब ये एसी और डीसी क्या है? अब बेटा जो एसी जनरेटर वो होगा जो आपको एसी करंट देगा, डीसी जनरेटर वो होगा जो आपको डीसी करंट देगा। अब नई बात, ये एसी करंट क्या है और डीसी करंट क्या है, क्लियर। अब आपका जो मोबाइल चार्जर वगैरह से आप करंट लेते हो, या जो आपका घर में ड्राई सेल होता है, जो घड़ी में सेल होता है, वो सारे डीसी सोर्स हैं, या जो बैटरी है वो डीसी सोर्स है। आपके घरों में जो करंट आ रहा है वो एसी सोर्स है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज एसी एंड डीसी। सो एसी और डीसी क्या है, और फिर मैं बताऊंगा कि कब जनरेटर आपको एसी करंट देगा, कौन सा एसी जनरेटर और कौन सा डीसी जनरेटर है, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस एसी एंड डीसी। सो एसी मींस अल्टरनेट करंट, डीसी मींस डायरेक्ट करंट। अब अल्टरनेट करंट का मीनिंग क्या है बेटा? अल्टरनेट करंट वो करंट है जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो वी कैन से दैट अ करंट, और वी कैन से दैट टाइम वेरिंग करंट। क्लियर। तो जो एसी है वो टाइम वेरिंग करंट है, मींस ऐसा करंट जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। क्या बोला मैंने? देखो कि फॉर एग्जांपल ये आपका एसी सोर्स, ये एसी अगर ये करंट आई है और ये आपका टाइम है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है एसी की। तो आपने क्या देखा, पहले ये ऊपर से नीचे गया और अगले स्टेप में फिर नीचे से ऊपर आएगा। तो आपने क्या देखा कि पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे आके फिर से डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। सो मीन्स टाइम वेरी करंट, मीन्स ऐसा करंट जो टाइम के साथ वेरी करेगा। कैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, अगले हाफ में फिर से क्या होगा नेगेटिव होगा, उसको बोलेंगे हम टाइम वेरिंग करंट। मीन्स ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ रिवर्स होती है, वो आपका एसी करंट है। अब डीसी करंट कौन सा है? कि ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ रिवर्स नहीं होती, उसको हम डायरेक्ट करंट whose direction does not changes or does not depend on the time, or a current which does not vary with the time is called direct current। तो उसका जो ग्राफ होगा वो आपका ये आएगा, ये टी है और ये आई है, आप देख रहे हो सीधा का सीधा चले जा रहा है। उसके बाद जो एसी करंट होगा बेटा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी 50 हर्ट्ज। अब ये ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन है, तो मीन्स एक सेकंड के अंदर आपका जो एसी करंट है उसकी 50 ऑसिलेशन होगी। तो मतलब जो फ्रीक्वेंसी है एसी की दैट इज 50 हर्ट्ज। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। और जो डीसी है उसकी होगी 0। क्लियर, 1 मार्क पॉइंट। उसके बाद जो तीसरा फोर्थ पॉइंट आता है, जो एसी है बेटा, इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द लॉन्ग डिस्टेंस। मींस एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू द लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे आपके घरों में जो करंट आ रहा है वो एसी करंट है, वो कहाँ से है? वो है पावर स्टेशन से। और पावर स्टेशन कहाँ पे है? आपसे 2000-3000 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से आपके घर तक आया। मीन्स एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू द लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन जो डीसी है उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट है, एसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वी कैन से दैट कि कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी चीप, मतलब सस्ते में ही हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके घरों में आपने मोबाइल चार्जर देखे हैं, जो घर में आ रहा है करंट वो एसी है, लेकिन मोबाइल डीसी पे चार्ज होता है। तो एसी कैन बी इजिली कन्वर्ट इनटू डीसी, बट डीसी कैन नॉट बी कन्वर्ट इजिली इनटू एसी। आपके घर में जो इन्वर्टर है वो कन्वर्ट करता है डीसी को एसी में, और जो मोबाइल चार्जर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और दूसरा बेटा, कि जो डीसी है वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है। वी डज नॉट गेट एनी शॉक व्हेन वी टच अ डीसी डिवाइस, बट व्हेन वी टच एनी एसी करंट कैरिंग डिवाइस, सो वी विल गेट शॉक। तो दिस इज अबाउट एसी एंड डीसी। सो इट मे बी 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन पेपर डिफरेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी। क्लियर। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज एसी एंड व्हाट इज डीसी। अब नाउ यहाँ पे आपका आता है कि कब आपका एसी जनरेटर होगा, कब आपका डीसी जनरेटर होगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि एसी और डीसी कब होगा। क्लियर, कि एसी जनरेटर कब है और डीसी जनरेटर कब है। तो बेटा जो एसी और डीसी है वो डिपेंड करता है इन रिंग्स के ऊपर,
कि जो रिंग्स है इनके ऊपर डिपेंड करता है कि रिंग का टाइप क्या है, तो उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। अगर आपके सिंपल यहाँ पे रिंग्स है, क्या है यहाँ पे रिंग्स, क्लियर, तो इफ देर आर द रिंग ओनली, सिर्फ रिंग है, तो आपको जो करंट मिलेगा वो मिलेगा एसी। क्लियर, इफ दीज रिंग्स आर द स्प्लिट रिंग्स, clear, these are the split rings which we have seen in case of motor which reverse the direction of current, clear। तो अगर यहाँ पे split rings है then you will get the DC current। तो पता लगा AC करंट कब देगा जनरेटर, AC जनरेटर क्या होता है, DC जनरेटर क्या होता है। DC जनरेटर वो जनरेटर जिसके अंदर कौन से रिंग है, स्प्लिट रिंग्स है, क्लियर। और AC जनरेटर कौन सा जनरेटर, जिसके अंदर बाकी सारा कुछ वही होगा लेकिन जो आपके सिर्फ वहां पे रिंग्स होंगे दैट आर नॉट स्प्लिट रिंग्स। सो दिस वी हैव डिस्कस अबाउट द जनरेटर। अब यहीं से आपका आता है फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और यहीं से आया आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड पढ़ा था, तो लेफ्ट हैंड को यूज करते थे फोर्स की डायरेक्शन के लिए, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड फोर्स की डायरेक्शन। तो अब जो राइट हैंड रूल है दैट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि जो आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है उसको यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि इसमें हमें करंट प्रोड्यूस दिख रहा है, इससे पहले में हमें फोर्स दिखाई दे रहा था। तो तीन लॉ आए आपके, पहले तो आया थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, वो किसके लिए, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए था। फिर आया लेफ्ट हैंड रूल, वो फोर्स की डायरेक्शन के लिए था फ्लेमिंग का। अब आ गया फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। बात वही है क्या, योर थंब, योर फर्स्ट फिंगर, योर मिडल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्लियर। इफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन योर मिडल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर। सो दिस इज योर राइट हैंड थंब रूल, क्लियर। राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, थंब रूल वी हैव डिस्कस प्रीवियसली इन द स्टार्टिंग चैप्टर। तो तीन रूल है, तीनों रूल का अलग अलग काम है। क्या हमने तीन चीजें डिस्कस की, हमने किया था एफ, हमने किया था बी और हमने किया था आई। अब आई के लिए फ्लेमिंग का क्या है, राइट हैंड रूल है, क्लियर। और एफ के लिए है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और बी के लिए आपका है राइट हैंड थंब रूल। तो ये तीन याद रखनी है, राइट हैंड थंब रूल फील्ड के लिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल करंट के लिए, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन के लिए। आगे आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डोमेस्टिक सर्किट, वो देखते हैं, दैट इज योर लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट आपका है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मीन्स जो सर्किट आपके घर में है उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसमें होता क्या है, इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देयर आर थ्री टाइप ऑफ वायर्स, तीन तरह की वायर्स हैं। कौन कौन सी, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। तीनों का अपना अपना पर्पस है, क्लियर। अब जो लाइव वायर है बेटा, वो वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज लाइव वायर। न्यूट्रल वो जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा। अर्थ वायर वो है विच इज कनेक्टेड टू द अर्थ। अब इनकी इंसुलेशन भी होती है, आपने देखा, कोई रेड कलर की, कोई ब्लू की, कोई ऑरेंज की। तो लाइव वायर इज ऑफ रेड कलर, लाइव वायर किसकी है, रेड कलर की है। एंड न्यूट्रल वायर इज ऑफ ब्लैक कलर एंड द अर्थ वायर में बी ऑफ ग्रीन कलर और ब्लू कलर। तो दिस इज द कलरिंग ऑफ द वायर। अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर, इसमें ये न्यूट्रल है। तो आपके घर में जो पोटेंशियल होता है बेटा, पिच पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है दैट इज 220, क्लियर। अब जो रेड वायर है उसका जो पोटेंशियल होता है बेटा वो 220 V होता है, और न्यूट्रल वायर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा तो उसका पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन किसका, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, दैट इज 220 V। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर क्या होगा। अब जो अर्थ वायर उसका अपना पर्पस है, क्लियर, ये एक सेफ्टी मेजर है अर्थ वायर। उसके बाद आपके जो घर में सर्किट आता है उसके अंदर फ्यूज आता है। हाँ, एक और पॉइंट बेटा कि जो लाइव वायर है और जो आपकी न्यूट्रल वायर है, क्लियर, यही आपकी जो इलेक्ट्रिक मीटर्स है उससे होके निकलती हैं, पास होती हैं, क्लियर। अब आती है बेटा फ्यूज। तो व्हाट इज फ्यूज, वी ऑल नो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, जो आपके घर में लगा होता है, सेफ्टी मेजर्स है, सेफ्टी डिवाइस है विच प्रोटेक्ट योर डिवाइसेस फ्रॉम द डैमेज। फ्यूज कैसे काम करता है हमने पढ़ा था कि फ्यूज इज मेड अप ऑफ कॉपर और एलॉय ऑफ निकल एंड कॉपर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। जब इसमें से करंट फ्लो होता है एक रेंज से ज़्यादा तो ये मेल्ट हो जाता है और आपका सर्किट ओपन हो जाता है, और आपके सर्किट में करंट फ्लो ना हो जाता है बंद। तो आपकी डिवाइसेस कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डैमेज।
Now, so what is fuse? We have discussed fuse is a safety device which is used in the domestic circuit for the safety purposes to protect your devices from the damage. कैसे कि जैसे ही करंट कम होगा सर्किट में या करंट ज़्यादा होगा तो फ्यूज वायर क्या होगी, हीटअप होगी, हीटअप होने के बाद वो हो जाएगी मेल्ट और सर्किट हो जाएगा ब्रेक एंड द नो करंट इज फ्लो थ्रू डिवाइस एंड योर डिवाइस कैन बी प्रोटेक्टेड। अब इसके बाद आता है फ्यूज रेटिंग। नेक्स्ट आपका एक वर्ड आएगा फ्यूज रेटिंग। अब फ्यूज रेटिंग क्या है बेटा, अब इसको आपने सुनना है फिर आपने इसको समझना है क्या है फ्यूज रेटिंग। फ्यूज रेटिंग क्या है बेटा, फ्यूज रेटिंग ऑफ अ फ्यूज कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन फ्लो थ्रू अ फ्यूज विदाउट मेल्टिंग इट। मतलब किसी फ्यूज में से हम मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करवा सकते हैं बिना उसके मेल्ट किए। सो व्हाट इज फ्यूज रेटिंग, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन फ्लो थ्रू अ फ्यूज विदाउट मेल्टिंग इट। क्लियर। अब आपके जो डोमेस्टिक सर्किट है हमारा इंडिया में, यहाँ पे दो तरह के फ्यूज होते हैं, दैट इज वन इज ऑफ 5 एम्पियर एंड अनदर इज ऑफ 15 एम्पियर। क्लियर। अब जो 5 एम्पियर का फ्यूज है इसका मतलब 5 एम्पियर के फ्यूज में से मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर ही फ्लो करवा सकते हैं। अगर करंट 5 से ज्यादा हो जाएगा तो आपका फ्यूज वो मेल्ट हो जाएगा। ऐसे दूसरा 15 एम्पियर का, तो 15 एम्पियर के फ्यूज में से मैक्सिमम 15 एम्पियर ही करंट फ्लो करवा सकते हैं। अगर करंट 15 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो आपका फ्यूज़ क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अब जो 5 एम्पियर का फ्यूज़ है दैट इज़ यूज फॉर द लाइट डिवाइसेस। लाइट डिवाइस कैसे, जैसे ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, इनके लिए आपका 5 एम्पियर का फ्यूज़ होता है। और जो 15 एम्पियर का फ्यूज़ है दैट इज़ यूज फॉर द हैवी डिवाइसेस। अब हैवी डिवाइसेस कौन सी, AC, रेफ्रिजरेटर, क्लियर, एंड मीन्स हैवी डिवाइसेस, वॉशिंग मशीन्स, टीवी, तो उनके अंदर होता है 15 एम्पियर का फ्यूज। तो अब फ्यूज रेटिंग समझ में आया सभी को। व्हाट इज फ्यूज रेटिंग, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन फ्लो थ्रू अ फ्यूज विदाउट मेल्टिंग इट इज कॉल्ड फ्यूज रेटिंग। तो दो तरह के फ्यूज हैं, 5 एम्पियर का और कितने का, 15 एम्पियर का। 5 एम्पियर का लाइट डिवाइस के लिए, हल्की डिवाइसेस के लिए, और जो 15 एम्पियर का है वो हैवी डिवाइसेस के लिए। तो आगे हम प्रिवेंटेशन मेजर पढ़ेंगे कि हाउ वी विल प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक सर्किट फ्रॉम द डैमेज। सो वी विल डिस्कस इट लेटर। नेक्स्ट आपके बेटा डोमेस्टिक सर्किट में दो टर्म और आती हैं, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। अब शॉर्ट सर्किट क्या है और ओवरलोडिंग क्या है इसको हमने समझना है कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। ये सीधी डेफिनेशन आती है व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का मीनिंग होता है बेटा व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, जब आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर्स कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कि जब आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। कि जब आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कहेंगे। क्लियर। अब शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट का मीनिंग ये है बेटा कि दो वायर थी वो इकट्ठी हो गई, क्लियर, तो उनका एरिया बढ़ गया। अगर एरिया बढ़ेगा तो रजिस्टेंस कम होगा, अगर रजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, अगर करंट ज़्यादा होगा तो हीट भी सर्किट में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपकी जो वायर्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। अब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्यों आई, वो इसलिए आई बेटा जो वायर्स होती हैं उनकी जो ऊपर की इंसुलेशन होती है, क्लियर, वो ब्रेक हो गई एंड दे कम्स इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम्स इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सो व्हेन दे कम्स इनटू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीजेस, क्लियर, इफ एरिया इंक्रीजेस resistance decreases because area and resistance are inversely proportional. So area increases, resistance decreases. अगर resistance कम है then current increases, अगर current इंक्रीज करेगा तो हीट प्रोड्यूस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये आपका था शॉर्ट सर्किट। उसके बाद आता है ओवरलोडिंग। बेटा नाम चला ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मीनिंग होता है व्हेन द मेनी हैवी डिवाइसेस आर ऑपरेटेड एट द सेम टाइम, कि जब एक साथ ही हम काफ़ी हैवी डिवाइस, कैसे जैसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर भी चला दी, रेफ्रिजरेटर भी चला हुआ है, एसी भी चला हुआ है, रेफ्रिजरेटर, एसी, व्हेन द ऑल इलेक्ट्रिक आयरन, व्हेन द ऑल दीज हैवी डिवाइसेस आर ऑपरेटेड एट द सेम टाइम, सो दिस कंडीशन इज नोन एज ओवरलोडिंग। और व्हेन वी इन अ सिंगल सॉकेट, कि जहाँ पे आप सिंगल सॉकेट के अंदर, एक ही सॉकेट के अंदर आपने वहाँ पे टीवी भी लगा रखा है, वहीं पे आपका अदर डिवाइसेस भी लगी हुई हैं, तो उसको बोलते हैं आप ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मीनिंग होता है when the many heavy devices are operated at the same time, the condition is said to be overloading, उसको हम overloading कहते हैं। शॉर्ट सर्किट है चाहे ओवरलोडिंग है, both are the reason of डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। और ओवरलोडिंग की वजह से ही जो आपकी वायर्स हैं वो हीटअप होती हैं, हीटअप होने से जो उनकी ऊपर की इंसुलेशन होती है वो
वो ब्रेक होती है एंड ड्यू टू दैट देयर विल बी अ शॉर्ट सर्किट। क्लियर। तो ये आपकी दो टर्म थी, शॉर्ट सर्किट देन ओवरलोडिंग। एक आपकी नेक्स्ट टर्म है अर्थिंग। अब अर्थिंग का मीनिंग क्या है? अब अर्थिंग जो बेटा होता है कि जो भी आपकी डिवाइसेस हैं, क्लियर, उनकी अर्थिंग करने की जरूरी है। अर्थिंग में से उनको अर्थ से क्यों कनेक्ट करना है? क्लियर। आप देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर आप देखो अर्थिंग डिवाइसेस लगी होती हैं। अब डिवाइसेस की अर्थिंग क्यों करनी है? अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल कि ये अब हम अर्थिंग की बात करें कि ये आपका कोई रेफ्रिजरेटर है, क्लियर, ये यहाँ पे स्विच में लगा हुआ है, हमने इसकी अर्थिंग नहीं की हुई, क्लियर। तो क्या हुआ कि ड्यू टू सम हीटिंग और सम अदर रीजन की जो इसकी वायर्स थी रेफ्रिजरेटर की, इसकी जो इंसुलेशन ब्रेक होगी, तो वो वायर्स थी जो वो डायरेक्टली इस मेटल केस के कंटेक्ट में आ गई। इसके कंटेक्ट में आ गई, मेटल के केस के कंटेक्ट में। अब जैसे ही इसको कोई टच करेगा तो उसको शॉक लगेगा, और शॉक लगेगा देन हर बॉडी गेट हार्म, क्लियर। लेकिन अगर हमने इसकी क्या कर दी बेटा? अर्थिंग कर दी। क्या कर दी इसके अंदर? अर्थिंग। तो अब क्या हुआ कि जो वो इंसुलेशन हुई है तो उस मेटल से वो करंट अर्थ में चला गया, इसमें चला गया अर्थ। और अर्थ बेटा एक गुड कंडक्टर, क्लियर। अर्थ आपका क्या? गुड कंडक्टर। इसको जितना मर्जी आप करंट दे सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे करंट ज्यादा हुआ तो उस करंट की वजह से जो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्यूज लगा हुआ था वो मेल्ट हो गया, और जैसे ही वो फ्यूज मेल्ट हुआ तो इस रेफ्रिजरेटर में से करंट फ्लो होना क्या हो गया? बंद हो गया। अब जब इसको हम टच करेंगे तो ये हमें प्रोटेक्ट करेगा शॉक से, अब हमें शॉक नहीं लगेगा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ अर्थिंग? जो अर्थिंग है बेटा, दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी टू गेट शॉक, की शॉक ना लगे, इसलिए बॉडी की मेटेलिक केसेस की हमें क्या करनी पड़ती है? अर्थिंग करनी पड़ती है। अगर अर्थिंग नहीं करेंगे तो जब हम मेटेलिक बॉडी को टच करेंगे तो हमें शॉक लगेगा, लेकिन जब अगर अर्थिंग हुई है तो उस अर्थिंग की वजह से, क्लियर, सो व्हेन वी टच दैट डिवाइसेस वी डजंट गेट एनी शॉक। तो ये तीन तरह की थी आपकी सेफ्टी मेजर्स इन डोमेस्टिक सर्किट। सेफ्टी मेजर क्या है? पहला सेफ्टी मेजर है नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर विद बेयर हैंड एंड बेयर फुट, कि नंगे हाथ हमें कभी भी इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना है। ऑलवेज यूज फ्यूज इन द सर्किट, हमें क्या यूज करना है? फ्यूज को यूज करना है किसके अंदर? सर्किट के अंदर। एंड थर्ड वन, ऑलवेज यूज अर्थिंग इन द सर्किट, की हमेशा अर्थिंग होनी चाहिए, फ्यूज को यूज करेंगे, और नंगे पैर और नंगे हाथ कभी भी डोमेस्टिक सर्किट की वायर्स को टच नहीं करना। तो दीज आर द सेफ्टी मेजर्स इन द डोमेस्टिक सर्किट। नेक्स्ट बेटा मैं आपके साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। पेज नंबर 237 के ऊपर आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। स्टेट द प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल। नेम द सम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट के सोर्स बेटा आपका बैटरी, ड्राई सेल और डीसी जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 3, विच सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेट करंट। तो बेटा एसी जनरेटर प्रोड्यूस अल्टरनेट करंट। नेक्स्ट कहता है रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच। तो सिंपल बात है बेटा, एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई है अपनी? ये देखो, ये एक साइकिल था, क्लियर। तो जब हम एक साइकिल में हम चलते हैं तो यहाँ पे है 2 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन, सॉरी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंजेस वंस इन ईच। तो डायरेक्शन तो किस में चेंज होती है? हाफ साइकिल में चेंज होती है। यहाँ से यहाँ गए तो यहीं पे क्या होगी आपकी डायरेक्शन चेंज। तो जो डायरेक्शन आपकी दैट इज चेंज इन द हाफ साइकिल। तो आफ्टर दैट वी विल नाउ मूव द नेक्स्ट पेज 238। क्वेश्चन नंबर, नेम द 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। तो 2 सेफ्टी मेजर क्या थे आपके? क्लियर। तो 2 सेफ्टी मेजर कोई भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्यूज भी एक सेफ्टी मेजर है जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं, और दूसरा आप अर्थिंग भी बोल सकते हो, और तीसरा आप जो सेफ्टी मेजर्स आपने क्या लिखना है कि नेवर टच द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस विद बेयर हैंड और बेयर फुट, क्लियर, और ऑलवेज वियर रबड़ ग्लव्स और रबड़ शूज वाइल हैंडलिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द सर्किट, एंड आल्सो यू कैन राइट हियर यूज अर्थिंग इन द सर्किट। An electric oven of 2 kilowatt power rating is operated in the domestic electric circuit, has a current of 5 ampere. What does do you accept explain? अब बेटा यहाँ पे जो आपका एक 2 किलोवाट पावर रेटिंग का एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी करंट रेटिंग जो है 5 एम्पियर है। बेटा क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे एक डिवाइस दे रखी है, उसकी पावर दे रखी है, क्लियर। एक डिवाइस है, उसकी पावर दी हुई है हमें। इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन जो है उसकी पावर दे रखी है अपने को 2 किलोवाट, क्लियर।
इन अ डोमेस्टिक सर्किट ऑफ 220 वी, जो वी आपको है वो दे रखा है 220 वोल्ट। और जो यहाँ पे बेटा करंट रेटिंग मतलब ये जो करंट रेटिंग है बेटा दैट इज फ्यूज रेटिंग। फ्यूज रेटिंग मींस जो उस डिवाइस के सर्किट में फ्यूज लगा हुआ है वो है 5 एम्पियर का। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इस P वी नो दैट P इज इक्वल टू VI। अब ये किलो वोट में है, इसको हम वोट में चेंज करेंगे तो बन जाएंगे आपके 2000 वोट। क्लियर। अब यहां से हम I निकालेंगे और उस I को इस 5 से कंपेयर करेंगे। तो मैंने बोला था अगर किसी डिवाइस में 5 एम्पियर का फ्यूज है, जब तक करंट 5 एम्पियर से कम होगा वो डिवाइस ऑपरेट करेगी, अगर करंट 5 एम्पियर से ज्यादा हो गया वो डिवाइस ऑपरेट नहीं करेगी। क्लियर। तो अब यहां से जब निकालेंगे आपका क्या I, तो I आपका आ जाएगा P/V। तो P आपका 2000 है और V आपका है 220। क्लियर। इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 100 और यहाँ पे आ जाएगा 11। क्लियर। अब यहाँ पे जब आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 9 पॉइंट समथिंग आएगी। तो लेकिन फ्यूज कितने का था, 5 एम्पियर का था, और ये डिवाइस खुद कितना करंट लेगी, दैट इज 9 एम्पियर। तो ये फ्यूज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो 9 पॉइंट समथिंग एम्पियर आएगा आपका बेटा, 9.1 आ जाए कुछ भी आएगा, देख लेना इसको। नेक्स्ट कहता है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ द डोमेस्टिक सर्किट। अब ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या था, ओवरलोडिंग का मीनिंग था कि व्हेन द मैनी हैवी डिवाइसेस आर ऑपरेटेड एट द सेम टाइम। तो उसको हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट के लिए क्या है कि वी डज नॉट ऑपरेट मैनी हैवी डिवाइसेस एट द सेम टाइम, डज नॉट कनेक्ट मैनी डिवाइस इनटू द सिंगल सॉकेट, की जो एक ही स्विच है उसके अंदर हमने एक से ज़्यादा डिवाइस को नहीं लगाना है, और एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा हैवी डिवाइसेस को ऑपरेट नहीं करना है। तो दीज आर द precautions should be taken to avoid the overloading. This is your question number 3. Now we are moving to the NTEX question. Clear. So in the NTEX question the first 1 2 3 4 5 6 are the MCQ. तो पहला आपका MCQ यहाँ पे, which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire. क्लियर, कि जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फील्ड है वो कौन बता रहा है। The field consists of straight lines perpendicular to the wire. The field consists of straight line parallel to the wire. The field consists of radial lines originated from the wire. The field consists of concentric circles around the wire. तो भाई हमने स्ट्रेट वायर ली थी, तो ये स्ट्रेट वायर थी, ये स्ट्रेट वायर को हमने ऐसे रखा था, तो ये सेंटर था, इस सेंटर के अराउंड क्या बने थे, कंसेंट्रिक सर्कल बने थे। तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज the process of charging a body, the process of generating magnetic field due to current passing through a coil, production of induced current in the coil due to relative motion between the magnet and the coil, the process of rotating the coil of electric motor। तो बड़ा सिंपल बात है, क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, the production of induced current in a closed coil due to changing magnetic field. That is option number 3. A device used to produce electric current, अब डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट अभी डिस्कस किया हमने, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर इज दैट, कि एसी और डीसी में क्या फर्क है जनरेटर में। एसी जनरेटर हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हाइल द डीसी जनरेटर हैज ए परमानेंट मैग्नेट। डीसी जनरेटर विल जनरेट हाई वोल्टेज, एसी जनरेटर विल जनरेट लेस वोल्टेज। एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स व्हाइल द डीसी जनरेटर हैज कम्यूटेटर। तो बेटा सिंपल सी बात हमने अभी पढ़ा था कि जो एसी जनरेटर होगा उसके अंदर स्प्लिट रिंग, उसके अंदर रिंग्स होंगे, और डीसी जनरेटर के अंदर आप क्या होंगे, इन द डीसी जनरेटर देयर आर द स्प्लिट रिंग्स। तो जो डीसी जनरेटर है उसमें स्प्लिट रिंग होंगे, इसको हम कम्यूटेटर कहते हैं, और जो आपका एसी जनरेटर है उसमें रिंग्स होंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट रिड्यूस सब्सिक्वेंटली डज नॉट चेंज, इंक्रीज हैविली, वेरी कॉन्टिन्यूसली। तो बेटा जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट करंट में एकदम से क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज, हैविली इंक्रीज। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एक इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, नो दैट इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बड़ा सिंपल सी बात है, जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है कि जो जनरेटर है वो काम करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लॉन्ग सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल एंड स्ट्रेट। अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली अ लाइव वायर। तो बेटा इसमें एक ऑप्शन सही है, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द 3 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो 3 मेथड कौन सा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, बाय यूजिंग अ मैग्नेट, बाय यूजिंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और बाय यूजिंग अ करंट कैरिंग कोयल, कि किस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो।
तो एक बार मैग्नेट को यूज करके प्रोड्यूस कर सकते हो, एक हॉर्सशू मैग्नेट को यूज करके प्रोड्यूस कर सकते हो, और एक किसी वायर में से करंट फ्लो करवा के भी आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ डज अ सोलेनोइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनोइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। कि कोई भी सोलेनोइड है, आपने उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल को चेक करना है, किसको यूज करके, एक बार मैग्नेट को यूज करके। कुछ नहीं है बेटा, इजी सा क्वेश्चन है कि ये आपकी क्या है, कोई भी ये सोलेनोइड है, इसमें से करंट फ्लो करवाया, क्लियर। हमने चेक करना है कि इसका नॉर्थ पोल कौन सा और साउथ पोल कौन सा, किसको यूज करके, एक बार मैग्नेट। तो एक बार मैग्नेट नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, क्लियर। इस बार मैग्नेट को मैं यहाँ पे लेके आया, क्लियर। तो ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो अगर मेरे को यहाँ पे फील हुई रिपल्शन, कि मीन्स इस एंड में और इस बार मैग्नेट में रिपल्शन हो, तो इसकी तरफ नहीं जा रहा। तो रिपल्शन कब होती है, जब यहाँ पे सेम पोल होता है, तो ये बन जाएगा नॉर्थ। और अगर यहाँ पे हमें लगी अट्रैक्शन की, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये बन गया आपका साउथ। तो हमने कुछ नहीं करना, वी विल ब्रिंग द बार मैग्नेट नियर द वन एंड ऑफ अ सोलेनोइड बाय पॉइंटिंग नॉर्थ पोल और द साउथ पोल। So if we take the north pole, so if there is a north pole and we feel there is a repulsion, अगर वहाँ पे क्या repulsion है, इसका मतलब the pole are same, तो both are north, तो ये बन जाएगा north। If there is attraction, then it will become south। Next आपका है, when is the force experienced by the current carrying place in a magnetic field largest। तो बेटा हमने पढ़ा था F किसके इक्वल था, F आपका था BIL sin थीटा, और थीटा कितना है, अपना 90 डिग्री था। तो F आपका बन गया था BIL। तो अपना रूल भी था कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स। तो परपेंडिकुलर जब होगा तो फोर्स आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, समझना है, इजी है वैसे। इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक इन द ऑन टू द वॉल, इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टू वर्ड द फ्रंट वॉल। सिंपल सी बात है बेटा कि ये हम कह देते हैं कि ये आपका क्या है, ये ऐसे है कि आप इस वॉल पे बैठे हो, क्लियर। ये आपकी बैक वॉल है और ये आपकी फ्रंट वॉल है, क्लियर। इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टू द फ्रंट वॉल, की एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, वी से दैट कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। ये ऐसे आता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, क्लियर। बैक से, ये बैक है और ये फ्रंट थी। एंड नाउ हियर इज रिटन दैट इज डिफ्लेक्ट बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड द राइट साइड। ये कहाँ मुड़ गया, राइट साइड। तो ये बेटा ऊपर चला गया यहाँ से, क्लियर। मतलब ये थी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और ये ऊपर डिफ्लेक्ट हो गया। अब सिंपल बात है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो करंट उधर जाएगा। मीन्स ये डायरेक्शन किसकी हुई, करंट की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये चलता चलता ऊपर की तरफ मुड़ गया। इसका मतलब अगर कोई चीज सीधी आ रही है और इसके ऊपर अगर कोई फोर्स लगे तब भी ये ऐसे जाएगी। इसका मतलब जो फोर्स लगा है वो है ऊपर की तरफ। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी बेटा, एफ की होगी। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ से फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा कोई मुश्किल नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो वी विल यूज फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लो, दैट इज उससे भी हो जाएगा। तो ये लिया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये फोर्स है, ये फील्ड है और ये करंट है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है, क्लियर। तो ये देखो, दिस इज एफ, दिस इज बी एंड दिस इज आई। तो ये आई की डायरेक्शन ये है, एफ ऊपर की तरफ है, तो बी क्या होगा, अंदर की तरफ। तो जो आपका फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज इनवर्ड। तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपने हाथ को अरेंज कर लिया। देखो ये एफ ऊपर की तरफ है, बिल्कुल सही। ये आई इधर है, एफ बी आई। तो जो बी है दैट इज इनवर्ड, क्लियर। तो इनवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 यू विल डू बाय योरसेल्फ। ये आप कर सकते हो। नेम सम डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज। तो बहुत सारे डिवाइस हैं, मिक्सचर है, ग्राइंडर है, क्लियर, वाटर पंप्स हैं, उन सब के अंदर आपकी मोटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कहता है इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, व्हाट हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज पुश इनटू द कॉइल, विथड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, विथड्रॉ फ्रॉम द इनसाइड कॉइल, हेल्ड स्टेशनरी। तो भाई ये आपका हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कोई कॉइल थी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे बार मैग्नेट है। तो कहता है जब इसकी तरफ लेके आएंगे तो सिंपल है, जब इसकी तरफ आएगा तो फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो गैल्वेनोमीटर क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा। वही बात है, अगर पहले डिफ्लेक्शन इधर थी, अब कहते हैं इसको मूव आउटवर्ड, इससे दूर लेके चलेंगे। अब इससे दूर जाएंगे तब भी गैल्वेनोमीटर क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा। मींस तब भी इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा।
लेकिन करंट की डायरेक्शन अब क्या होगी, उल्टी होगी। अगर पहले लेफ्ट से राइट था, अब राइट टू क्या होगा, लेफ्ट होगा। लेकिन अगर इसको कर दिया स्टेशनरी, स्टेशनरी इसको रोक दिया, तो अगर इसको रोक दिया इसका मतलब नो चेंज इन द फील्ड। अगर फील्ड चेंज हो रहा तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा और आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ पे है, टू सर्कुलर कोयल ए एंड बी आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर, इफ द करंट इन द कोयल ए इज चेंज, विल सम करंट इज इंड्यूस इन द कोयल, वी गिव रीजन। तो बेटा आंसर है यस। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा, ये पहली कोयल है, इसके यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, क्लियर, और ये दूसरी कोयल है, यहाँ पे लगा हुआ गैल्वेनोमीटर। अब मैंने आपको कहा था कि अगर इसको हमने एक बार ऑन किया, एक बार ऑन करेंगे तो एक बार गैल्वेनोमीटर जरूर डिफ्लेक्शन देगा, लेकिन अगर इसमें से करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगा तब आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दोबारा नहीं देगा। लेकिन इसमें करंट क्या, चेंज चेंज मतलब कभी करंट कभी कम कभी ज्यादा। तो जैसे इसमें से करंट फ्लो हुआ, क्या बन गई, मैग्नेट बन गई। अब जब करंट ज्यादा हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया, जब करंट कम है तो वीक मैग्नेट, बिकॉज हमें पता है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आई के है। तो जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फील्ड, जब वीक मैग्नेट उसके ऊपर वीक फील्ड, तो फील्ड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अगर फील्ड चेंज कर रहा है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपको बार बार दिखाई देगी। लेकिन अगर करंट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब आपने एक बार करंट दे दिया, उसको ना कभी कम किया ना कभी किया ज्यादा, तब आपका गैल्वेनोमीटर सिर्फ एक बार डिफ्लेक्शन देगा। या हम कह सकते हैं दो बार देगा। दो बार कैसे, कि जब सर्किट को ऑन करोगे तब डिफ्लेक्शन आई और जब सर्किट को ऑफ करोगे तब डिफ्लेक्शन आई, क्योंकि एक बार फील्ड बढ़ेगा और एक बार फील्ड कम होगा, इन बिटवीन कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने करंट को कभी कम कर दिया कभी ज्यादा कर दिया तो यू विल गेट अगेन एंड अगेन डिफ्लेक्शन, मींस इसके अंदर अगेन एंड अगेन करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। और ये फिनोमेना जो आपका है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा आपका, ये आपको हमने डिस्कस किया अभी। पहला है डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए था राइट हैंड थंब रूल, फिर फोर्स की डायरेक्शन के लिए था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो 3 रूल है बेटा अपने, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो तीनों के अलग अलग यूज हैं। तो इसकी ये होता है बी के लिए, ये होता है एफ के लिए और ये होता है आई के लिए। तो यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो राइट हैंड थंब रूल है वो फील्ड की डायरेक्शन के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है वो करंट की डायरेक्शन के लिए, विच करंट, इंड्यूस करंट के लिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन है आगे, एक्सप्लेन द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्राइंग अ लेबल डायग्राम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस। तो बेटा ब्रशेस का काम कुछ नहीं है, उनका काम है करंट को सर्किट से बाहर लेके आना, दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन। और वर्किंग प्रिंसिपल आप लोगों को हमने थ्योरी के अंदर डिस्कस किया हुआ है। व्हेन डज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अक्कर, तो हमें बताया इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होगा, कि जब आपकी वायर्स की इंसुलेशन टूटेगी, इंसुलेशन ब्रेक्स एंड द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम्स इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, देन द शॉर्ट सर्किट अक्कर्स। अब शॉर्ट सर्किट अक्कर होने से क्या होगा कि सर्किट का रजिस्टेंस कम हो जाएगा, रजिस्टेंस कम है, करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। करंट अगर ज़्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एंड योर सर्किट में कैच फायर। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, वाइट एंड नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेस। तो भी अर्थ वायर का क्या फंक्शन है, द अर्थ वायर इज यूज टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी टू गेट शॉक। कि जो अर्थ वायर है उसको हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट टू गेट शॉक, कि हमें करंट ना लगे, हमें झटका ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, उससे बचने के लिए हम अर्थ वायर का यूज़ करते हैं। तो अब इसके बारे में अर्थ वायर का कैसे फंक्शनिंग है अभी हम इसको देखते हैं कि वट। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, फंक्शनिंग ऑफ अर्थ वायर एंड हाउ इट वर्क। तो जो बेटा अर्थ वायर आपकी है वो एक सेफ्टी, वी कैसे इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, इलेक्ट्रिक सर्किट, द अर्थ वायर एक्ट एज सेफ्टी मेजर्स। अब अर्थ वायर काम कैसे करती है कि इट इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ, कि जब आपकी किसी भी जो वायर है उसकी जब इंसुलेशन टूट जाती है तो वो आपके जो डिवाइसेस हैं उसकी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाती है, और जैसे ही कोई पर्सन उसकी बॉडी को टच करता है तो उसको शॉक लगता है। लेकिन अगर वहाँ पे अर्थिंग हुई है तो बेटा वो करंट कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, क्लियर, एंड वी विल डजंट गेट एनी शॉक। सो इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग शॉक। सो इसको मैं रीड कर देता हूँ, क्या है यहाँ पे देखो, एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अर्थ वायर एक्ट एज अ सेफ्टी मेजर्स in an electric appliances with a metallic body. If there is some leakage of electric current to the metallic body, then the person using the appliance will get shock on touching it.
To avoid it, the earth wire is connected to the metallic body of the appliances. Since earth provide very low resistance conducting path of the current, the leakage current pass to the earth through it and the person using the appliances does not get any shock, कि उसको कोई शौक नहीं लगता। तो मतलब अर्थ वायर है हमें करंट लगने से बचाती है। कैसे काम करती है, अब वो करंट सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। जब भी कोई पर्सन उसको हाथ लगाएगा, जिसको जो जहाँ पे करंट आ गया है किसी डिवाइस में, तो उसको शॉक नहीं लगेगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे क्लियर जो हमने डिस्कस किए अभी। एंड तो एक आपका क्वेश्चन था बेटा यहाँ पे 6th MCQ था, स्टेट वेदर ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो बेटा जो पहली थी वो फॉल्स थी, जो सेकंड थी वो ट्रू थी। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कोयल कैरी करंट विल बी पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन। तो वही पैरेलल स्ट्रेट लाइन तो है ही था अपना सेंटर के ऊपर जब हमने निकाला था, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। अब आगे था लिस्ट द 2 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई आपके 2 मेथड आपको बताई दिए थे, बार मैग्नेट को यूज़ करो, होर्सशू मैग्नेट को यूज़ करो, इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करो, क्लियर, किसी करंट कैरी कंडक्टर को यूज़ करो। सो नाउ योर चैप्टर नंबर 13 is over with NCERT in-text and n-text questions. So now complete it, and after complete it, then you have 2 days time. So after that we will start our next chapter.